Hey dosto, I am Kalpana Jain and today we'll be learning about some of the terms used in banking system. So let's start. Firstly, we'll learn what is CRR and SLR. CRR is a cash reserve ratio. SLR is a statutory liquidity ratio. CRR is a percentage of money to be kept by all the banks with RBI in the form of cash, and SLR is the amount of money that bank has to keep with itself in the form of cash, gold or government securities. Now let's understand this with an example. Suppose a person has deposited 100 rupees into the bank, then the bank has to keep 3% of it with RBI, that is 3 rupees. Now again in this 100 rupees only, the bank has to keep 18.5% rupees with itself, that means 18.5 rupees. Now this 3% CRR and SLR 18.5% is the current rate. It keeps on fluctuating, but I have given the latest update. This is the current update of CRR and SLR. That means now after deducting 3 rupees and 18.5 rupees in 100, the bank is left only with 78.5 rupees. That means bank can only use this amount 78.5 rupees to give loan to the customers and they can gain the interest. So ये क्या कहते हैं कि CRR और SLR बहुत ही इजी टॉपिक है. इसमें क्या होता है कि अब मान लीजिए ए पर्सन ने, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है. अगर आपने 100 रुपये बैंक को दिए हैं तो ये पूरे 100 रुपये बैंक क्या इंटरेस्ट नहीं, किसी को लोन नहीं दे सकता. फॉर एग्जांपल अगर मैं ए पर्सन ने डिपॉजिट किया है तो ये बैंक 100 के 100 रुपये किसी को लोन नहीं दे सकता. तो फिर बैंक क्या करता है कि बैंक को इस 100 रुपये में 3% को RBI को डिपॉजिट करना पड़ता है. 3% मतलब यहाँ पे 3 रुपये हो गए, और SLR मतलब इसमें इसी 100 रुपये में 18.5% को क्या करना पड़ेगा, बैंक को अपने पास ही रखना पड़ेगा. और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि बैंक के पास सिर्फ 78.5 रुपीज़ बचेंगे. तो ये बचे हुए पैसे से ही सिर्फ बैंक क्या कर सकती है, किसी और कस्टमर को, क्लाइंट को क्या कर सकती है, लोन दे सकती है, और लोन देने के बाद उसमें इंटरेस्ट गेन कर सकती है. नाउ ये क्या होता है कि अब जो CRR है ये RBI को सिर्फ कैश के अकॉर्डिंग में ही होता है, पर ये जो SLR है उसे कैश या गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसी भी रूप में रख सकते हैं. यूजुअली क्या करते हैं कि CRR इसीलिए किया जाता है कि अगर इकोनॉमी में कोई कैश फ्लो एक्सेस हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसे कंट्रोल करने के लिए CRR को रखा गया है. और SLR को रखने की वजह ये है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल सोच लीजिए कि कोई डिपॉजिटर आके इमरजेंसी सिचुएशन में उसकी कम्प्लीटली वो डिपॉजिट को विड्रॉ करना चाहता है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड हो गई, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, तब बैंक के पास पैसे तो होने चाहिए ना अपने कस्टमर्स को देने के लिए. इस वजह से SLR को रखा जाता है. और एक और बात है कि CRR जो अमाउंट बैंक RBI को देता है, इस पर बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. पर जो बैंक अपने SLR में रखती है, जो भी फॉर्म में हो सकता है, कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो सकता है, उस पर वो इंटरेस्ट अर्न कर सकती है. For example, let's assume one more example. For example, if a bank has 1,000 rupees of total deposits, in that total deposits, bank has to keep 30 rupees to the RBI and rest of the 185 rupees with itself. Why it has to be kept with itself? The reason is they have to meet some emergencies or unexpected demand, and this RBI, the purpose of giving 30 rupees to RBI
or depositing with RBI is because RBI wants to control the excess flow of money in the economy. To control this, the RBI gives this rules and regulation, and whatever bank pays to RBI in the form of CRR, RBI never pays an interest for this, but for an SLR you can earn interest. So rest of the money, that is 785 rupees in 1000 rupees, after deducting both, if the balance left is 785 rupees, this 785 rupees bank can give this money to the customers as a loan and can gain interest. So this is what CRR and SLR. सिंपल में यह है कि जो भी पैसा बैंक के पास आएगा उसमें कुछ परसेंटेज अमाउंट आरबीआई को देना पड़ेगा और कुछ खुद के पास ही रखना पड़ेगा ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में उसे यूज़ कर सके, और बाकी बचे हुए पैसे से बैंक क्या करती है, अपनी लेंडिंग बोरोइंग की ट्रांजैक्शंस को रखती है। और यहाँ पे मैंने जो रेट लिखा है 3% और 18.5%, वो करेंट रेट है, अभी की रेट है, और ये रेट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। So let's understand the next topic. What is repo rate and reverse repo rate? Repo rate is also repurchase rate. जैसे कि आप नाम में ही सुन सकते हैं repo, मतलब यहाँ पे वर्ड में ही है repurchase rate। और repurchase rate क्या होता है कि यहाँ पे it is the rate at which the RBI lends money to the bank, and reverse repo rate is nothing but the rate at which RBI borrows money from the bank. Let's understand this with an example. For example, अगर बैंक के पास पैसे नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैंक के पास पैसे नहीं है तो बैंक क्या करेगी, अपने कुछ सिक्योरिटीज़ आरबीआई को देगी, और आरबीआई क्या करेगी, इसके बदले में बैंक्स को पैसे देगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लोन हो सकता है, ऐसे ही जैसे बैंक कस्टमर्स को लोन देता है, आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, और उस लोन फॉर एग्ज़ाम्पल अजम्पशन 15 करोड़ का लोन दिया हुआ है, तो इस पर आरबीआई क्या करेगा, एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और ये इंटरेस्ट क्या होगा, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल करेंट इंटरेस्ट है 4%, तो इस 15 करोड़ पर बैंक को क्या करना पड़ेगा, 4% इंटरेस्ट आरबीआई को देना पड़ेगा, तो इसे हम कहते हैं repo rate. So this is repo rate. Now reverse repo rate is completely the opposite one. That means RBI, what happens, RBI borrows money from the banks. If RBI needs money, then what will RBI do? RBI will get this money from the bank. In that way, this is called reverse repo rate. Now the current reverse repo rate is 3.35%. Now you have to here clarify that always repo rate is higher than the reverse repo rate, and reverse repo rate is always the lower than the repo rate. Now one more thing, it is not like a normal thing loan. What happens, कि repo rate में और reverse repo rate में क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए होता है, ये जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 1 हफ्ते के लिए या फिर 2 हफ्ते के अंदर के लिए हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि बैंक को क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटीज़ जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रिपो रेट में बैंक ने क्या किया हुआ है कि सिक्योरिटीज़ आरबीआई को दिया है, उस सिक्योरिटीज़ के बदले आरबीआई ने 15 करोड़ रुपए दिए, तो बैंक को ये गारंटी लेनी पड़ती है कि वो ये पैसे क्या करेगी, जल्द से जल्द दे के ये सिक्योरिटीज़ को वापस क्या कर लेगी, रीपरचेज़ करना है। इन सिक्योरिटीज़ को वापस उन्हें रीपरचेज़ करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे उनको 15 करोड़ के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन की तरह ही चलता है, पर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर एक कंपलसरी है कि ये सिक्योरिटीज़ को वापस रीपर्चेस करना ही पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट। रिपो रेट वो रेट है जहाँ पर बैंक क्या कर रही है, आरबीआई से पैसे मांग रही है और उन पैसों के बदले आरबीआई एक इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज करता है, एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। उस रेट को हम रिपो रेट कहते हैं और करंट रिपो रेट 4% है। और रिवर्स रिपो रेट मतलब, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीआई के पास पैसे नहीं है, या फिर सोच लीजिए कि बैंक के पास ही बहुत सरप्लस मनी है, वो सरप्लस मनी कहीं पे भी यूज़ नहीं कर रहे, तो वो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि दिस इज़ कम्प्लीटली द ऑपोजिट ऑफ repo rate, and the current reverse repo rate is 3.35%. And you have to remember this, always repo rate is greater than the reverse repo rate. 90% of the time it is always greater. So this is what repo rate and reverse repo rate. And if you like this video, please share and subscribe to my channel. And if you have any doubts regarding this, please comment down below. Thank you.